fertilization and implantation. Actually, we have studied the chapter reproduction in which we have already studied about the what is reproduction, what is male reproduction, their parts, function, female reproductive system, their parts and function, gametogenesis means production of gametes, spermatogenesis production of sperm, oogenesis production of ovum or egg, as well as menstrual cycle. It means we have covered around almost 75% topic related to this chapter. Now we will going to discuss about fertilization and implantation, that is the most important part of this chapter. Means after the spermatogenesis and after the oogenesis, and when the sperm and ovum met, then what happened? So let's continue. During copulation, semen is released via the female reproductive part and it enters into the vagina of the female, and it travels path via the uterine wall and reach to the isthmus ambulary junction. This is the part of the female reproductive part, means uterus and vagina. When the sperm release sperm via this path, it travels like this and reach at the isthmus ambulary junction. And from the ovary, this is the ovary. From the ovary, ovum is released and egg is also reached at this junction. Now there is one thing, that is the male gamete and the female gamete, that is the sperm and ovum. Male gamete is sperm and female gamete is ovum, is always haploid in nature. These are haploid in nature. When two haploid gametes are made, they will form a diploid zygote. They will form a diploid zygote. Means the nature of the zygote is diploid because the sperm and ovum is haploid in nature. It means what is the gametogenesis? Means production of gamete, and gamete is used to be fused. Means from here, when the sperm enter into the vagina and through the endometrium wall of the uterus, it will reach of the isthmus ambulary junction, and from the ovary, ovum is reached at the same place, and they will fuse and form zygote. That is the diploid in nature. Here, ovum haploid, sperm haploid will fuse, form diploid zygote, and after the biotic will divide, this zygote will convert into human body. चलिए देखते हैं क्या क्या होता है फर्टिलाइजेशन में. ड्यूरिंग कपलेशन सीमेन इज रिलीज, मींस व्हेन द coitus is proceed, means copulation is proceed, semen is released from the male reproductive part and is released from the vagina of the, means this part. After that, semen reach ambulary isthmic junction, as I have told you. Lots of sperm reach that region, means
पार्ट को कवर करते हैं। ये हो गया। इसके बाद एक और चीज हमने बताया केवल एक स्पर्म यहाँ पे पहुंचता है। एक चीज और हमने डिस्कस की थी, जो स्पर्म और ओवम होते हैं वो हैप्लॉइड नेचर होते हैं। इसको हम ब्रेक करके चीजें उठाते हैं। वो हमारा क्या है, सेक्स डिसाइडेड मींस सेक्स डिटरमिनेशन। वो कैसे सेक्स डिसाइड होता है कि जो जाइगोट बन रहा है वो मेल होगा कि फीमेल होगा, उसके लिए क्या होता है हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो मेल होती है उसके पास XX क्रोमोसोम होते हैं और जो फीमेल होते हैं उनके पास XY क्रोमोसोम होते हैं। बट आफ्टर द स्पर्मेटोजेनेसिस, जब स्पर्मेटोजेनेसिस होती है तो जितने भी स्पर्म बनते हैं उसमें 50% स्पर्म बनेंगे X अगर हम मेल की बात करते हैं और 50% बनेंगे Y। ठीक है, मेल में और XX ही बनेंगे, फीमेल में 50% X बनेंगे, 50% Y बनेंगे। अब ये हैप्लॉइड नेचर है तो यहाँ पे या तो ये X होगा या तो Y होगा या तो X होगा या तो Y होगा, ऐसे ही होते हैं। अब जो इसको सबसे पहले जो ना पूरा लेयर को ब्रेक करेगा वो जिस नेचर का होगा, अगर वो X होगा तो भी वो सेक्स को डिसाइड करेगा, अगर वो Y होगा तो भी सेक्स को डिसाइड करेगा। चलिए देखते हैं, ये हमारा क्या है, फीमेल सेक्स है, ये मेल सेक्स है। अगर सबसे पहले पहुंचने वाला जो हमारा एग स्पर्म है अगर वो X होगा तो इससे ये फर्टिलाइज होगा और बनाया गया X से X दैट इज फीमेल। और अगर पहले पहुंचने वाला स्पर्म Y होगा तो इससे X को मल्टीप्लाई करेगा, फ्यूज करेगा, बनाएगा XY दैट इज द मेल जाइगोट। तो मींस क्या होता है, जो सेक्स डिटरमिनेशन होता है वो फुल्ली डिपेंड होता है मेल पर। मींस जो पहुंचने वाला स्पर्म है वो X नेचर का है कि Y नेचर का है, उसी के थ्रू ये डिसाइड होता है सेक्स का कि जो बनने वाला बेबी है वो मेल होगा या फीमेल होगा। ओके, ये क्लियर हो गया। अब चलिए बात करते हैं कुछ एक और चीजों की, इम्प्लांटेशन की बात करते हैं। अब हमारा यहाँ पे सुनिए, ये हमारा स्पर्म आया, ओवरी, ओवम आया, दोनों मिलकर क्या बनाया, जाइगोट बना, जो कि क्या है, डिप्लॉइड इन नेचर है। अब ये क्या करेगा, अब यहाँ पे थोड़ा बहुत डिवाइड होगा। डिवाइड होगा कि सभी इसके पास एक सेल्स है, ये डिवाइड होकर बनाएगा 2 सेल्स, फिर बनाएगा डिवाइड होकर 4, then after 8 and then after 16, and after the 16 cells it will travel and invade the endometrial wall। means जब ये जाइगोट यहाँ से ट्रेवल करता है वो अपने आप को डिवाइड करता है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आता है और अपने आप को यहीं पे इन्वेड कर लेता है। तो उस प्रोसेस को कहते हैं इम्प्लांटेशन। when the zygote will embedded in the endometrial wall, the process is known as implantation। लेकिन यहाँ पे एक प्रोसेस है, हमें क्या होता है, ये जो हमारा जाइगोट है ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इनिशियली ड्यूरिंग द माइटोसिस जाइगोट विल फॉर्म 2 सेल्स। सबसे पहले क्या बनाता है, कोई बात नहीं, सबसे पहले वो 2 सेल्स आंसर है, सबसे पहले वो क्या बनाएगा, 2 सेल स्ट्रक्चर बनाएगा, देन 4, देन 8 एंड देन 16। अब ये जो 8 to 16 फेज होती है, इट इज नोन एज मारुला। इट इज नोन एज मारुला एंड ऑलवेज मारुला invade the endometrial wall and the process is known as implantation। Clear in here and start one thing। यहाँ पे जो ये माइटोटिकली डिवीजन हो रहा है कि पहले 2 सेल्स होंगे, अब यहाँ पे 2 सेल्स हैं, मींस इसके पास क्या है, 2 ब्लास्टोमियर्स है। ये क्या है, इन सेल्स का नाम ब्लास्टोमियर्स है, यहाँ पे 2 ब्लास्टोमियर्स। अब अगर इसके पास अभी डिवाइड होगा फिर 4 बनाएगा तो 4 ब्लास्टोमियर्स रहेंगे, 8 ब्लास्टोमियर्स एंड 16 ब्लास्टोमियर्स, ऐसे ऐसे अपने को डिवाइड करते रहते हैं और इसी तरीके से इनका स्ट्रक्चर बन जाता है। इसके बाद इनके बाहर एक कवरिंग हो जाती है जिसे कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। तो ये सारी प्रोसेस हो गई इम्प्लांटेशन एंड फर्टिलाइजेशन की। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ड्यूरिंग कॉपुलेशन सीमेन मींस जब भी कॉपुलेशन होता है क्वालिटी प्रोसीड होती है, सीमेन मेल सेक्स पार्ट से रिलीज होकर फीमेल के वजाइना में इंटर करता है और एक पार्ट को ट्रेवल करते हुए वो पहुंचता है इस्थमस एम्पुलरी जंक्शन के पास और वहां पर उसके पहुंचने के बाद ओवम आता है, ओवरी से ओवरी वहां पे पहुंचता है, दे विल फ्यूज एंड फॉर्म जाइगोट। द जाइगोट इज डिप्लॉयड इन नेचर बिकॉज़ द स्पर्म एंड ओवम ऑलवेज हैप्लॉयड इन नेचर। Okay, then after the zygote will divide mitotically and it form 2 to 4 to 8 to 6 cells
The 8 to 6 stage is known as the morula, and the morula embedded in the endometrial wall, and the process is known as implantation. And the sex determination is fully depend on the male sex part, because the 50% semen is X chromosome and the 50% semen is female Y chromosome depend on the male sex parts. And when the X chromosome met with the female sex part, met with the female gamete, it will form female zygote, and when the Y chromosome met with the ovum or female sex gamete, it will form the male zygote. Okay. Here, this is our question. Not all qualities lead to fertilization. Means जितने भी सारे पॉपुलेशन होते हैं, जितनी भी क्वालिटी होती है, उन सारे में फर्टिलाइजेशन लीड्स नहीं होता, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है. क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए मेल्स में तो सीमेन हमेशा रिलीज होते हैं, बट फीमेल में ओवम रिलीज होने की एक पर्टिकुलर स्टेज होती है, जो कि आती है हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल के ड्यूरिंग. जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, वो जो 14 डे में हमारा ओव्यूलेशन होता था, मीन जब ओवम रिलीज होते थे ओवरी से, उस टाइम पे जब पॉपुलेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस बनते हैं. मीन 75% चांसेस बनते हैं. अगर कोई हेल्थ इशू या कोई अदर प्रॉब्लम ना हो तो फर्टिलाइजेशन विल श्योरली डन. ओके, सो इट्स ऑल अबाउट द फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द व्हाट हैपेंड आफ्टर द इम्प्लांटेशन. मींस यहाँ पे जाइगोट आके इम्प्लांट हो गया है, अब ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, एम्ब्रियो डेवलप करेगा, मींस क्या होगी, एम्ब्रियो जेनेसिस होगी. तो वो प्रोसेस कैसे होगी उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिवाइड करेंगे. आई होप यू हैव ऑल absolutely understand this video. So till then, thank you class. Hello.